Welcome, dear student. Today we are going to talk about supplementary reader number 7. Dear student, up to now we have completed supplementary reader 1 to 6, right? And today we are going to discuss about chapter number 7, that is the necklace, right? In this chapter, what you are given, let's have a quick hint about it. Matilda is invited. Matilda is one of the character of the chapter and which leads the whole story, right? We can say the whole story hover around this character, as you can understand this one. Matilda is invited to a grand party. One of the party may be there, and Matilda, the lady, was invited over there. She has a beautiful dress, but no jewelry. She borrowed a necklace from a friend and lost it. Now, dear student, this is one of the most interesting story as well. At the same time, we are getting a kind of things. If we do not have our own things, and if someone offer us, and if we are not just able to take care of those things, then how it feel, right? तो यहाँ पे वही चीज हमें बताई गई है. Let's see what's there exactly in this chapter so that we can have better idea about it. See, she was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. अब देखो, एक बहुत ही सुंदर लड़की है, राइट? बहुत ही क्लास 1 जिसको आप कह सको, इस तरह का बिहेवियर है उसका. लेकिन यहाँ पे जो एक दूसरा स्टेटमेंट है, born as if through an error of destiny, इसका मतलब ये होता है कि शायद उसको बिना डेस्टिनी को यहाँ पे इस दुनिया में भेज दिया गया, मतलब बिना प्रारब्ध, नसीब अच्छा न होना. बाकी सब कुछ अच्छा है उसके लिए, लेकिन प्रारब्ध जिसको आप बोलते हो, फेथ बोलते हो, वो उसके लिए शायद अच्छा नहीं है. She got birth into a family of clerks. वो क्लर्क की फैमिली के अंदर उसने जन्म लिया था. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. अब ऐसे पुअर कैटेगरी के अंदर पैदा होने के बाद कुछ लोगों के पास ना ही अलग से कोई एम होता है, नहीं उनके जीवन में कुछ नई आशाएं होती है, उनको कुछ ऐसा भी नहीं होता है कि भाई चलो हम 4 लोग हमें पहचानेंगे. ये सब बहुत कम लोग उसको चाहते थे. वे इस तरह की एक कंजर्वेटिव फैमिली के अंदर बर्थ उसने लिया था, और क्या करना था कि भाई चलो बड़ी हो जाए, अच्छी दिखे तो मैरिज करके अपनी लाइफ दूसरी बना लेना. मतलब दिस वाज तथा कथित, जिसको आप बोल सकते हो एज इट इज रूटीन of a girl, and she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the board education. अब वहां पे बोर्ड एजुकेशन का एक ऑफिस था, उसके अंदर एक क्लर्क था, उसको भी उसके वहां पे मैरिज कर दिया, मतलब करवा दिया गया. दिस इज व्हाट she has to, right? She was simple, बहुत ही सादगी भरी लाइफ वो जी रही थी, but she was unhappy. लेकिन वो खुश नहीं थी. अच्छी थी, सादगी से जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन वो उतनी खुश नहीं. अब खुश ना होना ये एक अलग चीज होती है, राइट? खुश नहीं थी इसका मतलब हमारे यहाँ ये लेना है कि भाई शी वाज कंप्लीटली फेड ऑफ हर दैट रूटीन लाइफ, राइट? जो क्लार्क की फैमिली में से आना, फिर क्लार्क से ही मैरिज करना, फिर वही बोरिंग जिंदगी शुरू हो जाना, दैट वाज द इशू. शी सफर्ड instantly feeling herself born for all the delicacy and luxury. उसको कभी कभार ऐसा लगता था कि उसका जन्म ऐसी सामान्य लाइफ जीने के लिए नहीं हुआ है, अपितु उसको संसार के जितने भी लग्जरीज है, जितनी भी मान सम्मान चीजें होती है, उनको एंजॉय करने के लिए उसका जन्म हुआ है. ऐसा यहाँ पे वो लेडी यानी कि माटिल्डा फील कर रही थी. She suffered from poverty of her apartment. The shabby walls and the worn chairs, all these things tortured and angered her. अब वो जो जहाँ पे रहती थी, वो एक गरीब, मतलब जो एक नीचे तबके के लोग जनरली रहते हैं, थोड़ी सी गंदगी होती है, अपार्टमेंट में कलर अच्छा नहीं था, वॉल्स बहुत ही गंदी दिख रही थी, चेयर्स के ऊपर कहीं ना कहीं दाग धब्बे थे, तो ये सारी चीजें से उसको परेशानी होती थी. वो गुस्सा कर देती थी कि यार ये चीज क्या हो रही. When she seated herself for the dinner opposite her husband,
who uncovered the tureen with the delighted air, saying, "Oh, the god Popeye, Popeye of shining silver." She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frog nor jewel, nothing, and she loved only those things. अब यहाँ पे जो बताया गया है, जो एक शाम उसके पति के साथ वो बैठी होती है खाना खाने के लिए, तब शी जस्ट नो ग्लूमिली, मतलब she is thinking about that moonlight dinner, having a fork in her hand, and delicious dishes should be there. Everything was she was thinking about that elegant dinner. But now when she came, she just come out of that thought. She find that for dinner they don't have even forks nor jewels. ना ही उसके लिए जो फॉर्क आती है, चम्मच वगैरह जो आती है, अलग अलग कपड़े जो पहनने होते हैं डिनर के लिए, आप जब जाओ तब ज्वेलरी जो पहननी होती है, वो सब उसके पास नहीं होता है। फिर से वो थोड़ा सा नाखुश हो जाती है। She had a rich friend, a schoolmate at a convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole day for despair and disappointment. अब ये जो माटिल्डा है, उसकी जब वो स्कूल में पढ़ती थी ना, तब उसके वहां एक दोस्त हुआ करती थी, वो बहुत ही पैसे वाली थी। अब पैसे वाली दोस्त के घर पे वो ज्यादातर नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि जब भी वो जाती थी, जब वहां से वापस आती थी, तो बाकी सारा दिन वो अपने घर में रोती रहती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो रिचनेस है वो उसको दिखाया जाता था, और ये जो माटिल्डा है उस रिचनेस से सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि इसके पास तो कुछ था नहीं और उसकी फ्रेंड के साथ सब कुछ था। तो जो एक टोन ऑफ जेलसी होता है, दैट अफेक्ट्स पीपल। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न elated, bearing in his hand a large envelope. एक बार क्या हुआ कि उसका पति जॉब पे से अपने घर पे आया, थोड़ा लेट था, लेकिन उसके हाथ में एक एनवेलप था। उसने कहा अपनी वाइफ को, हियर इज समथिंग फॉर यू। उसने माटिल्डा से जाकर कहा कि देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ है। सो क्विकली ड्रू आउट ऑफ द प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंक्राइब्ड द वर्ड्स। वो तुरंत ही उस कार्ड की ओर लपकी, चिपक के गई, भाग के गई, जिसपे लिखा था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेपनियर asked the honor of Mr. and Miss Liesel Company Monday evening, January 18 at the minister's residence. Right? अब यहाँ पे क्या हुआ है? Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table and murmured, "What do you suppose I want with that?" अब उसके पति ने, यानी माटिल्डा के पति ने सोचा था कि यार ये इनविटेशन इतना बड़ा है तो जानकर खुशी होगी, हम जा रहे हैं वहां पे। लेकिन माटिल्डा जो है वो बोली कि यार इसमें उतना खुश होने के लिए क्या है, क्या आप क्या चाहते हो मैं वहां पे जाऊं, मतलब मैं क्या करूं यहाँ पे। ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन माटिल्डा ने अपने हस्बैंड को दिखाया आफ्टर रीडिंग दैट लेटर। बट माय डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। माटिल्डा के पति ने उसको बोला कि मुझे लगा कि यार ये चीज तो तुम्हें पसंद आएगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी भी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज एन ओकेजन, और यही तो एक जगह है, टाइम है, प्लेस है, राइट, कि आप जा सको। एंड फाइन वन, बहुत ही अच्छा ओकेजन है। एवरीबॉडी विशेस वन, हर कोई को ये इतने बड़े मिनिस्टर के ऑफिस पे उसके घरों पे अगर लोगों को बुलाया जाता है तो दिस इज वन ऑफ द interesting and to be a proud moment we can say, and it is very selected. यहाँ पे बहुत ही कम लोग आने वाले हैं, उसमें से हमारा सिलेक्शन हुआ। not many are given an employee, सभी एम्प्लॉय को ये नहीं कार्ड मिला है। you will see the whole official world there, आपको वहां पे दिखेगा कि लोग कैसे कैसे वहां पे आते हैं। she looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" उसने, यानी कि माटिल्डा ने अपने पति को कहा कि इतनी बड़ी पार्टी आप बोल रहे हो, तो उस पार्टी के अंदर पहनने लायक कुछ ढंग से कपड़े तो होने चाहिए।
गहने तो होने चाहिए, मैं क्या पहन के वहां पे आऊं? He had no thought of that. He stammered, "Why the dress you wear when we go to the theater?" तो मार्टिल्डा के हस्बैंड ने उसको बोला कि जब हम थिएटर जाते थे तो आपने जो ड्रेस पहना था क्या वो नहीं पहन सकती? इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, वो मेरे लिए बहुत अच्छा दिखता है। ही वॉज साइलेंट, इतना बोलकर वो बंद हो गया मार्टिल्डा का पति। स्टूपीफाइड इन dismay at the sight of his wife weeping, he stammered, "What is the matter? What is the matter?" अब जब मार्टिल्डा रो रही थी तब उसका पति आगे बोलने से कुछ अटक गया, रुक गया, और स्टैमरिंग होते हुए उसने पूछा कि भाई क्या 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 हुआ वो तो बता। By a violent effort she had controlled her vexation and responded in his calm voice, wiping her moist cheek, "Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I." अब यहाँ पे उसने मार्टिल्डा ने धीरे से अपने पति को कहा कि देखो मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे गहने नहीं है, तो मैं तो इस पार्टी में जाने से रही, तो इससे अच्छा है कि तुम अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी पत्नी के पास अच्छे कपड़े हो और वो पहन के बाहर जा सके। He was grieved but answered. अब मार्टिल्डा का पति है वो खुद एक बार थोड़ा सा मतलब चौंक गया, इतना करने के बाद भी अगर उसकी वाइफ ऐसा बोले तो हस्बैंड एक बार धीरे से थोड़ा सा मंद हो जाता, लेकिन फिर भी उसने आंसर दिया, "Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasion, something very simple." चलो कैसे हम जाकर बाजार में देखते हैं, कुछ एक अच्छा सूटेबल कॉस्ट्यूम लेके आते हैं जो आपको बाकी सारी पार्टीज के अंदर और इस पार्टी के अंदर भी काम आएगा। तो वो कितना कॉस्ट लेगा, मतलब उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? मतलब अब मार्टिल्डा का पति उसके लिए अच्छे आउटफिट खरीदने के लिए तैयारी दिखाता है। This is what he can do. सिर्फ इतना ही हमें तो ये कर सकता। She reflected for her some sound, thinking of a sum that he could ask for without bringing with it an immediate refusal and frightened exclamation for the economical cloth. Finally, she said in a hesitating, मतलब टू हेजिटेट करना मतलब खचकाहट से, धीरे से बोलना, बिल्कुल धीरे से वॉइस में वो बोली, क्या बोली? I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs is out to cover it. मार्टिल्डा ने कम से कम कहा कि अगर अच्छा सा आउटफिट नॉर्मल सा भी अगर आप लेने जाओ तो बाजार के अंदर उसका करीबन 400 फ्रांसिस, यानी ये 400 फ्रांसिस का मतलब आप लगा लो 1400 रुपए के करीब शायद एक अच्छा सा ड्रेस आ जाए, ऐसा वो उसने कहा। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. अब यहाँ पे हो रहा था क्या कि मार्टिल्डा के हस्बैंड को खरीद के लेना तो था, लेकिन उसके पास उतना ही पैसा था जितना पैसा वो समर के अंदर जब कहीं पार्टी में जाए तब पार्टी में शिकार करने के लिए उसको एक गन चाहिए थी। तो उसने जो पैसा मार्टिल्डा ने रिक्वायर किया है, एज्यूम किया है अच्छे ड्रेस के लिए, उतना ही पैसे से वो गन भी खरीदना चाहता था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। With some friends who went to shoot lark on Sunday, nevertheless he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." अब यहाँ पे जो मार्टिल्डा का हस्बैंड है वो अपने लिए गन न खरीद कर मार्टिल्डा के लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, राजी हो जाता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि भाई आप जो भी ड्रेस खरीदो मेक श्योर कि वो अच्छा लगे आपको और अच्छे से फिट भी हो। The day of the ball approached and May Loiselle seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days.
अब उसके पति ने अचानक से यहाँ पे पूछा, यार व्हाई यू आर एक्टिंग नॉट सो वेल, व्हाट हैपेंड टू यू, क्या हुआ, पिछले 2-3 दिन से आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है घर के अंदर। एंड शी रिस्पॉन्डेड, उसने आंसर दिया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. अब जैसे ही ड्रेस आ गया, उसने दूसरा एक तुक्का उठाया। सर क्या, कौन सा तुक्का उठाया कि अब मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, जैसे लगता है अगर मैं निकलूं बाहर तो बिना वो नहीं ऑर्नामेंट आप पहनते हो, कानों के अंदर, गले के अंदर, वो सब पहन के निकलते हो आप, तो कुछ इस तरह की बात है कि अभी आप अच्छा ड्रेस पहनते हो, अच्छी जगह पे जाते हो और अच्छी ज्वेलरी नहीं हो तो इट कॉस्ट। तो उसके हस्बैंड ने रिप्लाई किया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम ओरिजिनल फ्लावर्स यूज कर सकते हो, इन दिस सीजन दे लुक वेरी थिन, इस सीजन, ये फ्लावर की सीजन है, बहुत ही अच्छा भी दिखेगा, क्या हर्ज है इसमें। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो बिल्कुल कन्विंस नहीं होती। नो, शी रिप्लाइड, उसने कहा नहीं मैं ये सब नहीं पहनूंगी। देयर इज नथिंग मोर humiliating than to have a shabby hair in the midst of rich woman. बहुत पैसे वाली वुमन के बीच के अंदर में जब जाऊंगी तब ऐसे फ्लावर वाली खुशबू अगर फैलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। Then her husband cried out, उसका हस्बैंड आखिर में उस पर चिल्लाया, how stupid we are, हम कितने मूर्ख हैं, go and find your friend May Forestier and ask her to lend you her jewelry. ऐसा करना, तुम्हारी जो दोस्त है ना वो मिस फॉरेस्टियर, उसके पास आओ, उसके पास से 1-2 दिन के लिए लेके आओ जो भी आप ज्वेलरी चाहते हो। She uttered a cry of joy. It's true, she said. अब मार्टिल्डा को जो चाहिए था वो मिल गया। उसने कहा कि क्या आप सही बोल रहे हो, मैं जाके मांग के लेके आऊं उसके पास से। I had not thought of that. मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। The next day, जो हमारे राइटर की ये जो वाइफ है मार्टिल्डा, वो went to her friend's house, took herself to her friend's house and related her story of distress. May Forrester went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. अब जो की फॉरेस्टर थी वो बहुत अच्छी यहाँ पे तो अभी दिखाई दे रही है, तो उसने गई ऊपर अपने क्लोजेट में, वार्डरोब में से वो गोल्ड बॉक्सेस निकाले और उसको वहां पे सामने रख दिया और बोला कि लोजेल आपको जो भी लगे अच्छा वो आप इसमें से पसंद कर लो, चूज माय डियर। She saw that first some bracelet, then the collar of pearl, then a Venetian cars of gold and jewels of admirable workman. अब बहुत सारी अच्छी अच्छी वहां पे ये ज्वेलरी की बात की गई है, सुपरफिशियली बनाया गया चीज थी। She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" उसने पूछा कि इसके अलावा आपके पास, अब देखो मार्टिल्डा के पास तो कुछ था नहीं समझो, लेकिन वो अपने दोस्त के वहां पे गई, दोस्त ने सब कुछ निकाल के दे दिया, तो वो कंफ्यूज होकर दोस्त को ही पूछ रही कि इसके अलावा आपके पास कुछ है। अब यार तुम खरीदने आए हो या पहनने आए हो, आप बोरो कर रहे हो ना, किसी से मांग रहे हो, तो मांगने में ये चॉइस नहीं होती बेटा। Suddenly she discovered in a black stained box a superb necklace of a diamond. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this, please? Only this?" Why? Yes, certainly. अब यहाँ पे मार्टिल्डा ने अपनी दोस्त से वो हार ले लिया, मांग लिया कि क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। डियर स्टूडेंट, ये पोर्शन खत्म हुआ, बाकी का पोर्शन हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये पोर्शन के अंदर आपको घर पे एक बार ठीक से पढ़ना है। अगर हार्ड वर्ड लगे, टेक अ डिक्शनरी विथ यू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।